In this question, a cylinder of mass capital M2 kg is placed on two parallel rails inclined at an angle theta 37 degree to the horizontal. Side view is on the figure. A load of unknown mass is suspended from a light inextensible cord bound on the cylinder. The cylinder is held initially at rest and then released. If the cylinder starts rolling up, okay, this is a case of rolling up the incline, up the rails without slipping. What should be the mass of the load? तो इस लोड का मास यहाँ पे कितना होना चाहिए जिससे कि इसके जो रोलिंग हो वो यहाँ पर अप द इंक्लाइन हो. तो लेट अस फर्स्ट मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैं यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ. तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस. इट विल बी अलोंग द इंक्लाइन. तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन, एंड its angular acceleration alpha is something like this. So this is A and this is alpha, and for no slipping at this contact, so it can be easily written that A is equal to alpha r. So we have this relation A is equal to alpha r from no slipping at the contact. Now the forces in the diagrams, forces will be, the one force is obviously mg, vertically downward direction. So one force is mg. One force is mg, and if I break this string from here, then one force is tension on this. One force will be the tension. Tension acting vertically downwards. So this is the tension, and this tension is acting on this block. If I make the free body diagram of block, then tension will be visible on this block also. So this is tension on this cylinder, and this is tension on the block, and this is mg and capital mg, and this is the mg of this block only. तो टेंशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी लिस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट आई एम शोइंग द नॉर्मल रिएक्शन हियर. नॉर्मल रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. नाउ वी विल हैव फ्रिक्शन ऑल्सो, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा वो यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन है, और इस अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है. एम जी का कंपोनेंट करेंगे डाउन द इंक्लाइन होगा, टेंशन का कंपोनेंट करेंगे डाउन द इंक्लाइन होगा, और नॉर्मल तो अलोंग द इंक्लाइन नहीं हो सकता. तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अभी कोई भी ऐसा फोर्स नहीं दिख रहा है जो कि इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे. देयर कैन बी ओनली वन फोर्स विच इज़ फ्रिक्शन हियर. तो ओनली फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एक्सेलरेशन in this particular situation. So friction will be something like this. So this is the direction of friction here. So I think all the forces I have shown in this diagram, mg vertical downward, normal is like this, friction, acceleration, angular acceleration, tension, and gravitational force acting on this block. Now we have to write the equations of dynamics. Let us first write the equation for this सिलेंडर. तो सिलेंडर के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, और एक यहाँ पर एनएलएम की इक्वेशन में लिख रहा हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन अलोंग द इंक्लाइन फॉर सिलेंडर. इक्वेशन आई एम राइटिंग फॉर सिलेंडर. तो सिलेंडर के लिए अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे. तो अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिखेंगे तो फ्रिक्शन विच इज़ ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ माइनस दिस कैपिटल एम जी साइन थीटा. आई एम नॉट शोइंग द कंपोनेंट ऑफ एम जी इन द डायग्राम. एफ माइनस एम जी साइन थीटा. टी का कंपोनेंट भी वैसे ही होगा जैसे एम जी का है, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में, माइनस टी साइन थीटा. सो दिस इज कैपिटल एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर सिलेंडर. टॉर्क की इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हियर. तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. I will write it later. Torque about center of mass is equal to I about center of mass into alpha. Just keep in mind that I am writing the equation for cylinder. I am making the diagram for cylinder only. I have separated this block from this cylinder. I am just writing the equation for cylinder only. I have cut this block from this cylinder.
तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क होगा mg पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ओनली फ्रिक्शन और जो ये टेंशन लग रहा है इसका टॉर्क यहाँ पर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए यहाँ पर ये इस रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और टेंशन का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज होगा, और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन लिखूँगा यहाँ पे, तो टेंशन का टॉर्क क्योंकि क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो टी इंटू आर माइनस एफ इंटू आर, क्योंकि फ्रिक्शन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को आई एम राइटिंग ए बाई आर फ्रॉम ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर। Now 1 r is cancelled here and remaining r will be cancelled like this. So this will give us the next equation, t minus f, this is equal to ma by 2. So this is our equation number 2. Variables here, tension is variable, friction is variable, and this acceleration a is also variable, and we have got these two equations 1 and 2. Ultimately we have to find this mass. अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा यूजिंग कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का यूज़ करके वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ पे इस सिलेंडर का डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, तो सपोज़ जो सिलेंडर है वो सिलेंडर कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, और सिलेंडर का जो ये पॉइंट यहाँ कहीं पर है, दिस पॉइंट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के इस पॉइंट से यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट में है, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का वही एक्सेलरेशन होगा जो कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन है अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ यहाँ पर इसमें। तो अलोंग द स्ट्रिंग इस पॉइंट के क्या क्या एक्सेलरेशन है पहले आप वो देख लो। तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और उसके साथ साथ यहाँ पर जो अल्फ़ा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आएगा उन दोनों का यहाँ पर रिजल्टेंट ले लेता हूँ। तो जो a है वो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से a समथिंग लाइक दिस, एक तो a आ जाएगा, और जो अल्फ़ा इंटू आर है वो इस तरीके से आएगा, और अल्फ़ा इंटू आर जो है वो खुद भी यहाँ पर a के बराबर ही है, तो a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर। इन दोनों का जो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, या जो भी है जिधर भी जा रहा होगा, तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किधर की तरफ है यहाँ पर। तो ये वाला एक्सेलरेशन जो अल्फ़ा इंटू आर है ये तो स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा, लेकिन इसके हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। वी हैव टू टेक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए, और ऑब्वियसली कि ए यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर ए साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग ये जो एक्सेलरेशन होगा वो ए माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ए साइन थीटा तो यहाँ पर ए से कम ही होगा। तो इसी तरीके से जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो हमको पता चल गया कि यहाँ पर a माइनस ए साइन थीटा होने वाला है। तो जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूँगा तो इसकी इक्वेशन, ब्लॉक की इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ अब यहाँ पे आगे। तो mg को पहले लिखना पड़ेगा, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द ब्लॉक। mg माइनस दिस टेंशन, दिस इज़ इक्वल टू m a इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस का यूज़ करते हुए फर्दर सॉल्व करना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि 1 और 2 को ऐड करके फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर लेता हूँ। तो फ्रिक्शन विल बी एलिमिनेटेड आफ्टर एडिंग 1 एंड 2। तो लेट अस ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 2 विल एलिमिनेट फ्रिक्शन हियर। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो यहाँ पर ये t जो होगा यहाँ पर t आएगा और माइनस टी साइन थीटा आएगा, तो t इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लिया माइनस, अब जस्ट मैथमेटिकल पार्ट इसका बच रहा है यहाँ पर बस सब सॉल्व करने के लिए, और t इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस एम साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू ma प्लस ma बाई 2, दिस इज 3/2 ma। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में अल्टीमेटली हम टेंशन को यहाँ पर अभी एलिमिनेट कर लें। तो थर्ड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं पूरी इक्वेशन को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि माइनस टी इंटू 1 माइनस साइन थीटा और प्लस टी इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्मॉल एम जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये बच जाएगा यहाँ पर इसमें, और यहाँ पे माइनस एम जी साइन थीटा, दिस इज़ इक्वल टू
यहाँ पे एम ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 कैपिटल एम ए। अब यहाँ से आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, तो इसका जो एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन यहाँ से निकाला जाए तो यहाँ पर आप एक कॉमन ले लो इधर, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ इसका, यहाँ पर यहाँ पर जो एम जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एक कॉमन लेने के बाद में ये स्मॉल m इंटू 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर प्लस 3/2m, ठीक है, ये बच गया। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पर इसका मास, कि ये जो ब्लॉक है इसका मास यहाँ पे कितना होगा। अब मास कैलकुलेट करना, और मास शुड बी सच दैट कि ये ऊपर ही जाए, ठीक है, यहाँ सॉरी, ये जो यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर अप द इंक्लाइन जाए, तो सिलेंडर अप द इंक्लाइन जाए तो इसका मतलब हमने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड किए थे उन्हीं डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पर हमने ए लिया है वो अल्टीमेटली मैथमेटिकली पॉजिटिव आना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पर जो भी आंसर हमें मिल रहा है उसमें मास शुड बी सच दैट कि एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव, दिस ए शुड बी पॉजिटिव टू अचीव रोलिंग अप द इंक्लाइन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन अब फाइनली यहाँ पर ये लगा रहा हूँ कि दिस एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब फिर तो ये डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, तो एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव, ये कंडीशन यहाँ पर इसमें इम्पोज करते हैं। अब आप देखो कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में तो ये m जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, और ऑब्वियसली कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, तो डिनोमिनेटर से कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर जो है उसको हमें यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव करने के लिए g को तो आप कॉमन लेके यहाँ से हटा दोगे, और यहाँ पर अब जो बच जाएगा वो ये बचेगा यहाँ पर कंडीशन इम्पोज करने के बाद में, m इंटू 1 माइनस साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल M साइन थीटा, और यहाँ से स्मॉल m शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल M साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हुआ इसका आंसर इन वेरिएबल्स। अगर आप वैल्यूज पुट कर लेते हो, कैपिटल M थीटा साइन 37 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह 37 रखेंगे, साइन 37 इज़ 0.6 या 3/5। तो यहाँ पर आप देखोगे कि m की वैल्यू 3 kg आ जाएगी, तो m शुड बी ग्रेटर देन 3 kg। तो एक तो यहाँ पर ये इसका तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब जैसे मैंने बताया था कि टॉर्क की इक्वेशन आप यहाँ पर इसमें यूज़ कर सकते हो अबाउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये जो हमारे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है इसके वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सेंट्रीपिटल यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन होगा, ये वैसे तो नॉन इनिशियल फ्रेम बन जाता है जब जैसे ही ओमेगा यहाँ पर आएगा, तो इस ए इज इक्वल टू अल्फा आर की वजह से तो अलोंग द इंक्लाइन तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन इसका एक एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा टूवर्ड द सेंटर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इसलिए ये नॉन इनिशियल फ्रेम जरूर होगा, लेकिन इसके लिए जब आप सूडो फोर्स लगाओगे तो सूडो फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई किया जाता है, तो सूडो फोर्स आप यहाँ पर लगाओगे, तो सूडो फोर्स आप यहाँ पे इस तरीके से जब लगाओगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये अल्टीमेटली इसी पॉइंट से पास कर जाएगा, जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन सेंटर ऑफ रोटेशन है इसी पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, तो कोई सूडो टॉर्क यहाँ पर नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अलावा आप कोई भी दूसरा पॉइंट उठाते हो तो आपको सूडो टॉर्क लेना पड़ सकता है, लेकिन जनरली इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के इन केसेस में, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो सूडो फोर्स यहाँ पे आप लगा रहे हो वो सूडो फोर्स इसी पॉइंट से पास कर जाता है, तो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन में सूडो टॉर्क नहीं आता है। तो इसको भी आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पर इससे बे बार यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, उससे आप देखोगे कि फ्रिक्शन का टॉर्क हमको नहीं लेना पड़ेगा, हम फ्रिक्शन को इक्वेशन में लाने से बच जाएंगे। तो फ्रिक्शन से बचने का एक रास्ता यहाँ पर हमारे पास में हो सकता है कि हम यहाँ पर यूज़ करें इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के अबाउट टॉर्क। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन का यूज़ करके कैसे करना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने टेंशन और mg को दिखाया है, और इस पॉइंट ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इसके अबाउट मुझे यहाँ पे टॉर्क लेना है इसमें। अब आप देखोगे नॉर्मल का टॉर्क ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, जो फ्रिक्शन यहाँ से पास हो रहा था वो भी उसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ टेंशन और mg का टॉर्क आएगा।
टेंशन का टॉर्क इसके अबाउट ऑब्वियस है कि क्लॉकवाइज आ जाएगा, और mg का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो क्योंकि टेंशन का टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए मैं टेंशन के टॉर्क को पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन टॉर्क लिखने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार यहाँ देख लेना होगा। तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर ये लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा टेंशन का टॉर्क लिखने के लिए। और mg का टॉर्क लिखने के लिए दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको लिखना होगा। अब यहाँ पर ये रेडियस अगर मैं r एज्यूम कर लेता हूँ तो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा r sin थीटा। तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस भी हो जाएगा r sin थीटा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे हो जाएगा r माइनस r sin थीटा। तो दोनों के मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल चुके हैं। तो टेंशन T इसके लिए r इंटू 1 माइनस साइन थीटा। mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो mg के टॉर्क के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ mg माइनस के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद r साइन थीटा, दिस इज द नेट टॉर्क। एंड नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2 होता है, प्लस mr² कर लेंगे इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ a/r हियर। तो यहाँ पे आप देखोगे r जो है कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और ये बन जाएगा t इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस mg इंटू साइन थीटा, दिस इज 3/2 ma। और अगर आप यहाँ पे इसको मैच करा कर देखो तो ये इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके ऑब्टेन किया था, t इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा, दिस इज 3/2 ma। और एग्जैक्टली यही इक्वेशन हमने जब ये 1 और 2 को ऐड किया था तो उससे हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिल गई थी कि t इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा, दिस इज इक्वल 3/2 ma। तो बस दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंस इतना ही है कि हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिया है, और दूसरे में हमने थोड़ा सा समझते हुए सिचुएशन को इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिया है। और एक में फ्रिक्शन यहाँ पर दो इक्वेशन में आ रहा है, टॉर्क के इक्वेशन में भी आ रहा है, और जो हमने लीनियर इक्वेशंस ट्रांसलेशनल मोशन के जो इक्वेशन लिखी है उसमें भी फ्रिक्शन आ रहा है। यहाँ पर इसमें हमें यहाँ पर ट्रांसलेशनल की इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ी है, इसके लिए जस्ट हमने एक टॉर्क की इक्वेशन लिखी है। तो समटाइम्स ये जो टॉर्क की इक्वेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस वो हमारे टाइम को सेव कर सकती है। दो इक्वेशन का जो काम है वो एक ही इक्वेशन में चल सकता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सोच समझ करके इन इक्वेशंस को यूज़ करना होगा।